understanding the research philosophies and approaches. So regarding this chapter, हमने ये जो research philosophies and approaches हैं हमने पहले ही discuss की हुई हैं in the very first class when we discussed qualitative and quantitative के बीच में difference क्या है. So this is going to be pretty easy because most of you guys जो आए थे उन्होंने देखा था कि how these things work and what these things are and what are the basic foundations and philosophies behind the methods and designs and approaches that we use in research. So what is the purpose of this particular chapter? So by the end of this chapter, you should be able to define the key terms like ontology, epistemology, explain the relevance to business research, explain the relevance for business research of philosophical perspectives such as positivism, realism, ठीक है, and then pragmatism and interpretivism, understand the main research paradigms which are significant for business research, distinguish between main research approaches, ठीक है, deductive and inductive, state your own epistemological and axiological positions. So we'll see what these things are. I'm going to repeat these things if anybody has missed it, and so I'll try to discuss these things again. But we are actually constrained due to the availability of time, so we have to wrap this up as soon as we can. But also the quality should be there. So the research onion, actually आपने onion देखा है ना, onion क्या होता है कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर, फिर उसके ऊपर लेयर होता है. तो रिसर्च के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सिमिलर वे में हैं और स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, लेयर बाय लेयर अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपकी, अब अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले फिलोसफीज हैं. लेट मी ओपन दी डैशबोर्ड. इज इट ओके? सो सबसे पहले फिलोसफीज हैं, एंड व्हाट फिलोसफीज आर, आप ये एरो देखें, ये फिलोसफीज हैं: पॉजिटिविज्म, रियलिज्म, okay, interpretivism and pragmatism. Okay, so these are what? These are philosophies, research philosophies हैं ये. Then there are approaches to like attain to approach to reach certain research, how to do it. ठीक है, तो there is a deductive approach, then there is inductive approach. Then there are strategies of how to conduct the research. There are different ways to do it. So there is experimental research, there is survey research, then there is case study, then there is action research, there is grounded theory, there is ethnography, there is archival research. So most of these things are majorly concerned about the quantitative way. कोई और यूज कर रहा है क्या डैशबोर्ड? प्लीज डोंट. ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. तो देन देयर इज मोनो मेथड. ये कौन सा जो है ऑप्शन है, ये आपकी चॉइसेस हैं. चॉइसेस क्या है कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो. अब ये जो मेथड है ना, ये बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से आते हैं. मोनो मेथड मतलब आप कोई एक यूज कर रहे हो, या तो आप क्वालिटेटिव यूज कर रहे हो, ठीक है, या तो आप क्वांटिटेटिव यूज कर रहे हो, ठीक है. और देन देयर इज मल्टी मेथड, यू यूज अ मिक्स ऑफ मेथड्स, ठीक है. Then there is cross sectional and there is longitudinal, and then finally data collection and data analysis, how to do it, and you need to specify these things first. आपको डेटा, जब आप डेटा कलेक्ट करने की बात करते हैं तो आपको ये सारी चीजें पहले स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. And let's remove this first. Okay, so हम आगे मूव करते हैं. अंडरस्टैंडिंग योर रिसर्च फिलोसफी. तो बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो रिसर्च फिलोसफी इज एन ओवरआर्चिंग टर्म, ठीक है. ओवरआर्चिंग टर्म का मतलब ये है कि भाई ये एक जो है सरफेस है हर चीज के लिए, या फिर अगर आप कहें तो अम्ब्रेला है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. बट दिस इज मोर रिलेटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ दैट नॉलेज, ठीक है. पहले तो नॉलेज डेवलप कैसे होती है, व्हाट नॉलेज इज, हाउ नॉलेज इज अटेन्ड, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं.
तो वी स्टार्ट विद ontology. हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि भाई ontology इज मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज नॉलेज. तो basically ontology is concerned with the nature of reality. अब reality क्या है? Reality is what you can see, what you can touch, आपके जो senses हैं, जिस चीज को accept करें, that is reality. So ontology is more concerned with reality. This raises the question of the assumptions researchers have about the way the world operates and commitment held to particular views. You need to टेक अजम्पशंस या कमिटमेंट या व्यूज जो है आपके, वो उस रियलिटी के तो ही होने चाहिए. The two aspects of ontology we describe here will both have their devotees. ठीक है, devotees मतलब ontology के अंदर जो approaches है, for example reality की बात कर दी हमने, हम then we will talk about another approach uh, in coming slides. तो एक्चुअली जो डिवोटीज मतलब रिसर्चर्स हैं जो ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं, तो they will actually they have different two views, and we will talk about them among business and management researchers. In addition, both are likely to be accepted and producing valid knowledge by many researchers. So no matter which method you are using, until and unless you are getting the valid knowledge, then that method is fine, and you need to justify what you are doing. So the first aspect of ontology we discuss is objectivism. What is objectivism? Objectivism को हम positivism भी कहते हैं. और हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो is more like objectivism. ठीक है, what it believes in is facts and figures. ठीक है, facts and figures, and आपके जो सिंगल रियलिटी पे जो बेस करे. मतलब मैंने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच कोई यूज करते हैं तो व्हाट यू विल गेट इन द एंड, आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर होगा. ठीक है, फिर उस नंबर के बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेंगे कि भाई यस और नो. अगर सिग्निफिकेंट है तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. जो हम हाइपोथेसिस प्रपोज करके उनको स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आपकी ऑब्जेक्टिविज्म की फिलोसफी को फॉलो करती है या आपकी पॉजिटिविज्म को फॉलो करती है. तो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट. तो वो सिंगल रियलिटी की बात करती है. लेकिन when we this portrays the position that social entities exist in reality external to the social actors concerned with the existence. तो this is another point कि ये कहते हैं कि भाई सोशल एक्टर्स जो है उसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, ये सिर्फ उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं ऑन कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट सेटर्स पैरेबल्स जैसे हम कहते हैं. So the second aspect is subjectivism, that holds that social phenomena are created from perceptions and consequent actions of those social actors. तो subjectivism कहता है कि भाई जो आपकी जो perceptions हैं, वो फॉर्म करती हैं सोशल फिनोमेना को, और आपके जो कॉन्सिक्वेंट एक्शंस हैं, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो बिहेवियर्स हैं एज ए सोशल एक्टर, वो उन सोशल फिनोमेना को कॉज करते हैं, रादर देन कि आप किसी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बेसिस पे किसी चीज को फॉलो करो. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना थ्रू इट्स ओरिजिन. परसेप्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू प्ले. और हम ये कहते हैं कि भाई जो सब्जेक्टिविज्म है दैट इज लाइक मल्टीपल रियलिटीज, वो मल्टीपल रियलिटीज की बात करता है. तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ ऑन्टोलॉजी. हमने ये कहा था कि भाई क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को हमने डिस्कस किया था, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. ऑन्टोलॉजी में हम दोनों पॉजिटिविज्म एंड सब्जेक्टिविज्म की कुछ शाखों को डिस्कस कर सकते हैं. Then when we'll come to epistemology, then again these two things will come into play, but we'll see how these things are working. और आपको शायद ये चीज़ें थोड़ी-सी जो है मुश्किल भी लगे, आपको लग रहा होगा कि भाई ये कौन से टर्म्स हैं. अगर आपने पहली क्लास अटेंड नहीं की तो आई एनकरेज यू गाइस टू रीड द बुक फर्स्ट. पहले आप बुक रीड करें एंड देन यू कैन आस्क मी इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम. तो Blakey 1993 describes the root definition of ontology as the science or study of being. Blakey 1993 ने definition दी ontology की. उन्होंने कहा कि जो ontology है is the science or study of being है. ठीक है, and develops this description from the social sciences to encompass claims about what exists, what it looks like, what units make it up,
and how these units interact with each other. अब मैंने पहले ही बात की कि भाई हम बात कर रहे हैं what is knowledge, हम what के thing को concern कर रहे हैं, ठीक है? तो ontology, the science or study of being भी यही कहती है कि भाई what that thing is, and you will definitely need something, some information about that thing, and that will be in a perspective, an ontological perspective, जिसमें आपको देखेंगे कि what exists, का जो claims हैं, what it looks like, ठीक है, कैसे दिखती है, व्हाट यूनिट्स मेक इट अप, मतलब उसका शेप क्या है, कैसे वो चीज जो है, कैसे नहीं, हम क्या को कंसर्न करेंगे, हाउ दीज यूनिट्स इंटरेक्ट, और कैसे वो जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जो फिजिकल उसके बीइंग हैं, वो कैसे जो है इंटरेक्ट करते हैं. इन शॉर्ट, ontology describes our view where claims or assumptions on the nature of reality and specific is this an objective reality that really exists, or only a subjective reality created in our mind. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हम कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी का, क्योंकि अगर ये हमें फिलोसॉफिकल फाउंडेशन अपनी रिसर्च की पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है, क्या हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करनी है या हमें सब्जेक्टिव अप्रोच यूज करनी है. तो हमारे लिए इन पहले हमारी जो अगर हम डिडक्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो हमें अपनी ओवरलाइंग ओवर आर्चिंग जो फिलोसफीज हैं उनको समझना जरूरी है. For the everyday example, they use the example of a workplace report asking one of the questions whether it describes what is really going on, and or only what the author thinks is going on. ठीक है. They go on to highlight the complexity that is introduced when considering phenomena such as culture, power, or control, and whether they really exist or are simply an illusion, further extending the discussion as to how individuals determine their realities. Does the reality exist only through experience of it, or does it exist independently? So, as we said, we actually are concerned about what is happening, what things form something, and what is reality that is going on, and then what we do is we actually create a meaning out of that, and considering those phenomena like culture, power, or control, and then we actually apply it to the groups and individuals, and we basically follow both objectivism and subjectivism. So the second philosophy is epistemology. Ontology पहले हमने डिस्कस की, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं epistemology. Epistemology concerns what constitutes acceptable knowledge in a field of study. ठीक है, epistemology में हम जैसे हमने सिंपली कहा कि भाई ontology is what is knowledge, तो epistemology में हम कवर करते हैं how that knowledge is attained. ठीक है, हम how के questions को फिगर आउट करते हैं. And closely coupled with ontology and its considerations of what constitutes reality, epistemology considers views about the most appropriate ways of inquiring into the नेचर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ऑन्टोलॉजी जो है वो देखता है कि रियलिटी कैसे बनती है, सॉरी क्या क्या किस चीजों से, व्हाट कंस्टिट्यूट्स, ठीक है, किन चीजों से रियलिटी बनती है. एंड एपिस्टेमोलॉजी बताती है कि वो कौन से अप्रोप्रिएट वेज हैं जिसके थ्रू हम जो है इंक्वायर करें नेचर ऑफ द वर्ल्ड को. ठीक है, हम हाउ के क्वेश्चन को अटेंड करते हैं. एंड व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट आर द सोर्सेज and limits of knowledge. Questions of epistemology begins to consider the research methods and ठीक है, methods, and Erickson and Colvin go on to discuss how epistemology defines how knowledge can be produced and argued for. तो ये एंड में कवर हो गया जो हमने करने की कोशिश की, how knowledge can be produced and argued for. ठीक है. तो Blakey 1993 again describes epistemology as the theory or science of the methods or grounded of knowledge, grounds of knowledge. ठीक है, the theory or science of method or grounds of knowledge, we talk about it. ठीक है, expanding this into the set or of claims or assumptions about the ways in which it is possible to gain knowledge of reality, how what exists may be known, what can be known, and what criteria must be satisfied in order to be described as knowledge.
ठीक है, कौन-कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जो सैटिस्फाई करने चाहिए ताकि हम उसको कह सकें कि भाई वी आर एक्चुअली गेनिंग द नॉलेज। देखें ये थ्योरीज़ जो है ना, ये बेसिकली रिसर्च जो आप करते हैं उसकी फाउंडेशन है, कि भाई हमारा हमारा पर्पस क्या होता है रिसर्च करने का, कि हम नॉलेज गेन करें। और नॉलेज के अगेन देन देयर आर टाइप्स ऑफ नॉलेज, देन देयर आर वेज़ ऑफ नॉलेज एंड देन नॉलेज कैसे क्रिएट होती है, नॉलेज क्या है, ये वो हमें फिलॉसफीज़ बताती है। ठीक है, Chia 2002 describes epistemology as how and what it is possible to know and need to reflect on methods and standards through which reliable and verifiable knowledge is produced। अब ये डिफरेंट ब्लैकी है, चिया है, और काफी हमने अदर ऑथर्स को डिस्कस किया, एरिक्सन को डिस्कस किया। ये हमें बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑफ देयर डेफिनेशंस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट दे थिंक अबाउट दिस एंड हाउ do they think that these things actually work in the phenomena. So if you will go online and you will search their names along with these definitions, you might reach to some papers, some research papers, and you can study them in order to understand these things deeply. But we are going to discuss these things in brief here. So Hedge and Cunliffe 2006 summarize epistemology as knowing how you can know and expand this by asking how is knowledge generated, what criteria discriminates good knowledge from a bad knowledge, ठीक है, uh, and how should reality be represented or described. They go on to highlight the interdependent relationship. So this is very simple definition. अगर आप इसको 2-3 मरतबा पढ़ें और समझने की कोशिश करें, दिस इज वेरी सिंपल। एच एन क्लिफ ने क्या कहा कि एपिस्टेमोलॉजी इज नोइंग हाउ यू कैन नो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप नॉलेज को गेन कर सकते हो, एंड एक्सपांड दिस बाय आस्किंग हाउ इज नॉलेज जनरेटेड, नॉलेज कैसे जनरेट होती है, एंड क्राइटेरिया, व्हाट क्राइटेरिया डिस्क्रिमिनेट गुड नॉलेज और बैड नॉलेज के बीच में कौन से क्राइटेरिया हैं आपको डिफरेंस पता चल जाए, एंड हाउ शुड रियलिटी बी रिप्रेजेंटेड और डिस्क्राइब्ड। ठीक है, so this is what a simple definition of epistemology is. So interdependent relation, they go on to highlight the interdependent relationship between epistemology and ontology and how one both informs and depends upon the other. अंडरस्टैंडिंग योर रिसर्च फिलोसफी, अब उसके जो फिलोसफी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उसमें हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। तो पॉजिटिविज्म जो है वो नेचुरल साइंटिस्ट प्रेफर करते हैं। नेचुरल साइंटिस्ट कौन से होते हैं? जो डिस्कवरीज करते हैं, जो 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 इसको क्या कहते हैं कि नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को ज्यादा बेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बायोलॉजिस्ट है, वो कोई चीज स्टडी कर रहा है, तो वो एक फैक्ट वो उसके सामने आएगा, एंड ही विल बी लाइक हैविंग दैट फैक्ट बिफोर हिम। तो सिमिलरली रियलिज्म की बात करेंगे तो रियलिज्म इज डायरेक्ट एंड क्रिटिकल रियलिज्म, व्हाट रियलिटी इज व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू कैन फील इज व्हाट रियलिटी कंस्टिट्यूट्स, so that's what realism से। इंटरप्रेटिविज्म आपके जो है सब्जेक्टिव अप्रोच में आ जाता है, कि जो आपके जो सोशल एक्टर्स हैं वो चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनको इंटरप्रेट कैसे करते हैं सब्जेक्टिविज्म के अंदर। तो उसके बाद वी हैव एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज मोर अबाउट एथिक्स, जजमेंट्स अबाउट वैल्यू। तो एथिकल क्या है, मोरालिटी क्या है, ये सारी चीजें एक्सियोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। So we'll see what they are one by one. So positivism can be defined as the research approaches that employ empirical method। empirical methods कौन से होते हैं? वो methods जिसपे data यूज की हुई हो। ठीक है, make extensive use of quantitative analysis और develop logical कैलकुलस टू बिल्ड फॉर्मल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव में यूज हो, क्योंकि आपके क्वालिटेटिव में भी रिसर्च में भी आपकी जो है यूज होती है, क्या कहें कि एम्पेरिकल डेटा यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई आप लोग कितनी मरतबा अपनी जो है फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग लेक्चर अपने सर को खुजा रहे हैं, ठीक है, यू आर लाइक पुटिंग हैंड ऑन योर हेड एंड you maybe this is itching or you are thinking something, so I will do what I will simply note your what to say the occurrence of that behavior, and then I will simply put it on table, and then I can use different behaviors and then check the analysis। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके स्ट्रेस लेवल चेक कर दी, फिर उसका उसका रोल मैंने उसका इफेक्ट मैंने आपके जो है बिहेवियर से चेक कर लिया। सो देयर कैन बी मिक्स्ड मेथड्स जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कंबाइनली स्टडी करें। देयर आर, लेकिन मल्टी मेथड एंड मिक्स मेथड आर डिफरेंट। मिक्स मेथड में आप क्या करते हो कि सम पार्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर देयर, सम पार्ट्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस आर देयर। मल्टी मेथड में आप डिफरेंट अलग अलग तौर पे दोनों को यूज करते हो। ठीक है,
You will understand when you will actually get into these things. At this moment, इस वक्त आपको just अंडरस्टैंड करना है कि ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके डीप में अभी जाने की. But whenever you will write a research paper, you will conduct some research, you need to understand these foundation things. So realism, is another philosophical position which relates to scientific inquiry. The essence of realism is that what these senses show us, ठीक है. रियलिज्म में मैंने कहा ना 5 सेंसेस की हम बात करते हैं. What they show us is reality and is true. The objects have an existence independent of human mind. इसमें कहते हैं कि भाई human mind से जो है independent है. And in this sense, realism is opposed to idealism. The theory that only the mind and its contents exist. Idealism कहता है कि भाई जो है आपका जो mind है, it is the core of everything. ठीक है. Without it there is nothing. अब जो सारी जो नॉलेज है, जो सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर बेसिकली ड्यू टू द माइंड. अगर माइंड है तो यू आर लाइक एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज थिंग्स. इफ इट वांट माइंड, यू वुडंट बी possible, or it wouldn't be possible for you to experience such. So let's move on. Direct realism and critical realism. तो direct realism and critical realism में क्या इशू है, क्या डिफरेंस है, तो हम वो कवर करेंगे. बट गिव मी अ मोमेंट. असद ने शायद मैसेज किया है, तो मुझे देर से मिला है. लेट्स सेंड हिम द स्क्रीनशॉट. सो लेट्स गेट बैक. बट मेरे ख्याल से ये मीटिंग जो है ये 6 मिनट में ऑफ हो जाएगी. तो अगर ये ऑफ हो जाए तो मैं दोबारा मीटिंग क्रिएट करके आप लोगों को लिंक्स शेयर करूंगा, एंड देन यू कैन ज्वाइन दैट अगेन. ठीक है. तो नो नीड टू थिंक के क्लासेस ओवर. Direct realism and critical realism. So it says that what you see is what you get. ठीक है. डायरेक्ट रियलिज्म कहता है कि आप जो जो दिखता है is what you get. ठीक है, वही है. What we experience through our senses portrays the world accurately. आप अपने senses के थ्रू जो चीज देखते हो, जो चीज अंडरस्टैंड करते हो through your senses is what actually is. ठीक है, लेकिन it's not that way always. There is your mind that actually shows you different things, different interpretations, different understanding of things, different phenomena, different social behaviors. So then there is critical realism. Critical realism, realists argue that we experience sensations. ठीक है, जो हमें एक्सपीरियंस होता है, ये हमने साइकोलॉजी के क्लास में भी कवर किया था. आपने अगर पढ़ी हो साइकोलॉजी तो यू मस्ट हैव कवर्ड दैट इन योर क्लास ऑफ साइकोलॉजी. तो सेंसेशन एंड परसेप्शन को आपने समझा होगा. तो वी एक्सपीरियंस, जो हम चीजें एक्सपीरियंस करते हैं वो थ्रू सेंसेशन होती है. द इमेजेस ऑफ थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड, नॉट द थिंग्स डायरेक्टली. ठीक है. क्रिटिकल रियलिस्ट पॉइंट आउट हाउ ऑफन आवर सेंसेस डिसीव अस. एंड क्रिटिकल रियलिस्ट कहते हैं कि भाई समटाइम्स हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें डिसीव भी करते हैं. हम चीज़ों को अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के हिसाब से देखते हैं. We try to relate it with something, to understand, to comprehend its meaning, and to actually remember what it means. Then we have interpretivism. Interpretivism advocates it is necessary for the researchers to understand differences between humans in our role as social actors. ठीक है. This emphasizes the differences between conducting research among people rather than objects such as truck and computers. ठीक है. तो ये कहते हैं कि भाई जो ह्यूमंस हैं वो आपके जो हैं सेंटर है सारी चीज का. सोशल एक्टर्स जो हैं, एंड वो चीजों को मीनिंग देते हैं. तो इंटरप्रेट कैसे करना है कि भाई वो अपने फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सोसाइटीज हैं, वो डिफरेंट बिहेवियर्स को अपने हिसाब से मीनिंग देती हैं, अपने कल्चर के हिसाब से मीनिंग देते हैं. So that's what interpretivism is. Interpretive research is concerned with the meaning that people attach to norms, rules. जैसे हमने कहा ना culture, and then हम interactions की बात करते हैं. Care is taken not to impose a previous understanding of norms, rules, and values on others, but rather to understand their beliefs and actions from their point of view. The focus is not only on what they tell us directly about the reasons for their beliefs and actions, but also on the social practices that underlie them. ठीक है. सिर्फ हम नॉर्म्स और बिलीफ की बात नहीं करते, लेकिन हम सोशल प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं. सोशल प्रैक्टिस गिव्स मीनिंग टू सोशल एक्शन. Then there is pragmatism. So pragmatism holds that the most important determinant of epistemology and ontology, ideology adopted in research question.
ठीक है, आपके जो ये जो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन में आते हैं। आपके रिसर्च क्वेश्चन की नेचर क्या है? अगर आपके रिसर्च क्वेश्चन की नेचर इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स रियलिज्म, इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सब्जेक्टिविज्म, उसमें फिर हम जब समझेंगे कि आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है वो किस किस्म का है, तो उससे हमें आपकी अप्रोच का भी पता चल जाएगा, आपके जो है फिलॉसफी का भी पता चल जाएगा। देन वी विल इजीली फनल डाउन टुवर्ड्स द मेथड्स दैट वी आर ट्राइंग टू यूज। तो रिसर्च पैराडाइम्स जो हैं is a way of examining social phenomena from which particular understandings of these phenomena can be gained and explanations attempted, ठीक है। So then there is deduction. What deduction is? There are 5 sequential stages of testing a theory. Deduction, deducing a hypothesis, ठीक है, expressing the hypothesis operationally, देन हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, एंड देन डिडक्शन क्या होती है कि हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। जो हमारी जो मोस्टली हम हमारी जो क्वांटिटेटिव स्टडीज हैं, that is more oriented towards deduction. We already have a theory. We actually create hypothesis out of that. If we are going to validate it, and then we funnel down towards the specific things, expressing the hypothesis operationally, टेस्टिंग दी ऑपरेशनल हाइपो टेस्टिंग कैसे करते हैं, डेटा के बेसिस पे टेस्ट करते हैं, एग्जामिन द स्पेसिफिक आउटकम्स एंड मॉडिफाइंग द थ्योरी। अगर थ्योरी मॉडिफाई हो रही है तो हम मॉडिफाई करेंगे, वरना वैलिड करेंगे उसको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्शन, एक्सप्लेनिंग कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल का दूसरा वेरिएबल पे इम्पैक्ट, जैसे हमने मॉडल्स बनाए थे क्लास में। एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डेटा। तो आप का जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो इस किस्म के होते हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट, आपका बायस नहीं आता। कॉन्सेप्ट ऑपरेशनलाइज फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तो मोर जो ओरिएंटेशन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में होती है, हमने जैसे डिस्कस किया, एंड देन वी जनरलाइज बेस्ड ऑन व्हाट वी गेट। कमिंग टुवर्ड्स द इंडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द वे ह्यूमन बिल्ड देयर वर्ल्ड, इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, जिसमें हम थ्योरी फॉर्मुलेशन करते हैं, ईच ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करके, permitting alternative explanations of what's going on, being concerned with the context of events, using more qualitative data, and using a variety of data collection methods, ठीक है। तो अब रिसर्च अप्रोच कैसे आप यूज करेंगे? The right choice of approach helps you to make a more informed decision about research design. Think about which strategies will work for you. Adopt your design to cater for any constraints, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है आपकी रिसर्च क्या है, एंड देन यू विल अप्लाई appropriate approach to it. So I think the first chapter is complete. ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे आपकी इंडक्शन अप्रोच को। इंडक्शन अप्रोच क्या होती है? स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, तो विल सिंपली मूव फॉरवर्ड। द राइट चॉइस ऑफ अप्रोच हेल्प्स यू टू मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द रिसर्च डिजाइन, ठीक है। अगर आप ओनियन को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो राइट चॉइस कैसे लेनी है, अगर आपको अप्रोच पता हो चल जाएगी कि आपको कौन सी यूज करनी है, तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू डिजाइन, टू सिलेक्ट अ डिजाइन। Think about which strategies will work for you, research topic, and adopt your design to cater for any constraints, ठीक है। And then combining research approaches, things worth considering are the nature of research topic, ठीक है। रिसर्च टॉपिक की नेचर क्या है, आपके पास कितना टाइम है, इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगेन एक जियोलॉजी की बात करते हैं हम। रिसर्च ऑडियंस मैनेजर्स, ठीक है, और मेकर्स कौन है। Then there are thin differences between both, and we need to understand के क्या क्या differences हैं। Deduction emphasizes scientific principles, moving from theory to data, and then the nature to explain causal relationships, collection of quantitative data, the application of controls to ensure validity of data, the operationalization of concepts to ensure clarity of definition। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जस्ट इसकी एक समरी है। Researcher independence of what is being researched, the necessity to select samples of sufficient size in order to generalize conclusions, and then induction emphasize gaining an understanding of the methods humans attach to events, a close understanding of the research context, the collection of qualitative data, a more flexible structure to permit changes of research, emphasis as the research progresses,
a realization that the researcher is part of research process and less concerned with the need to generalize. So researcher is part of in induction when we talk about qualitative research. So researcher in itself is the instrument. So this is the summary of the chapter. We talked about research philosophy that relates to the development of knowledge and the nature of knowledge, and contain important assumptions about the way in which you view the world. Then the three major ways of thinking, we talked about epistemology, we talked about ontology, and we talked about axiology. And then we talked about four paradigms that are radical humanist, radical structuralist, interpretivist, and functionalist. Then two main approaches are deduction and induction. So that's all. We are done with our chapter. तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो फिफ्थ चैप्टर है, इट्स क्वाइट स्मॉल, जस्ट 20 स्लाइड्स, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको अंडरस्टैंड करें. So the fifth chapter is formulating the research design. Research design क्या होता है? You already know that. So the process of research design is research choices, then research strategy, then time horizon. तो हम देखते हैं कि research design आपकी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, ठीक है. तो यू सी यहाँ पे आपने philosophies देख ली, positivism, realism, interpretivism. Then we talked about approaches. Then we need to talk about strategies, we talked about choices, and we talk about time horizon techniques. तो strategies से लेके यहाँ पे strategies से लेके choices, time horizon and techniques, आपके ये चारों जो points हैं ये आपके research design में आ जाते हैं. You see this purple section, ठीक है, purple section, लेकिन I think data is also part of this, data collection and procedures. तो this is your research design कि भाई आपके जो method है, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो कौन सी हैं, एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे है, केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी है, क्या है. एंड देन उसमें आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं. एंड देन आपकी जो क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम कहते हैं कि भाई आप जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज को स्टडी करते हो, एक ही वेरिएबल को लेते हो लेकिन उसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो. क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक सिंगल पॉइंट इन टाइम में स्टडी करते हो. तो द रिसर्च डिजाइन नीड्स क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन. ये मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिसर्च क्वेश्चन से ही रेज होते हैं. टू स्पेसिफाई सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन के आपके सोर्सेज क्या क्या होंगे. टू कंसीडर कंस्ट्रेंट्स एंड एथिकल इश्यूज, वैलिड रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ डिजाइन. ठीक है, ये सारे चीजें आपको कंसीडर करनी होती है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, हमने रिसर्च के टाइप्स यूज किए, डिस्कस किए थे. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ वैल्यूएबल मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, to seek new insights, to ask questions, and to assess phenomena in a new light. It is particularly useful if you wish to clarify your understanding of a problem, such as if you are unsure of precise nature of the problem, आपको पता नहीं है क्या है, so you need to explore it. You need to explore its foundational things. You need to explore how it works, and you need to explore uh, what it has to study, why to study it. देन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हमने सिंपल यही कहा था कि भाई हम कॉज एंड इफेक्ट की बात कहते हैं. तो देर आर थ्री प्रिंसिपल वेज ऑफ कंडक्टिंग एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप पहले तो लिटरेचर को देखेंगे, देन यू कैन यूज क्वालिटेटिव मोड ऑफ इंक्वायरी इनटू दैट. आप एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू कर सकते हो, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन actually collect data based on some structured questionnaire as well. The objective of descriptive studies, अब हम descriptive studies को डिस्कस कर रहे हैं, is to portray an accurate profile of persons, events or to situations. तो descriptive में हम simply बताते हैं कि प्रोफाइल बताते हैं कि भाई हमारा ये जो गिवन एरिया है, ये जो बंदा है, ठीक है, या फिर ये जो फैमिली है, उनका प्रोफाइल क्या है. प्रोफाइल में कौन सी चीजें हैं, इनकम होती है, जेंडर होता है, उसमें आपके जो है उसमें आपकी जो है कंजम्पशन होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. यू कैन डिस्कस दैट. दिस मे बी एन एक्सटेंशन और ए फोर रनर टू द पीस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ठीक है, ये एक्सप्लोरेटरी का भी हिस्सा हो सकता है. मोर ऑफन अ पीस ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मे बी it is necessary to have a clear picture of a phenomena on which you wish to collect data prior to data collection. ठीक है, तो डेटा कलेक्शन से पहले अगर आप को किसी भी अपने सैंपल की एक पिक्चर चाहिए तो यू नीड टू हैव अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो सैंपल है वो किस टाइप का है. एक्सप्लेनेटरी स्टडीज और एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशनशिप्स. ठीक है, studies that establish causal relationship between variables may be termed as explanatory research.
जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, हमारे पास मीडिएटर्स होते हैं, मॉडरेटर्स होते हैं. We have already discussed it in the class. So the emphasis uh, here is on studying a situation or a problem in order to explain the relationship between variables. For example, that cursory analysis of quantitative data on manufacturing scrap rate show a relationship between scrap rates and the age of machine being operated. ठीक है, ये just एक example है. तो रिसर्च स्टडीज कौन कौन सी यूज होती हैं? रिसर्च स्ट्रेटजी, सॉरी, एक्सपेरिमेंट है, एक्शन रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, सर्वे है, एथनोग्राफी है, केस स्टडी है एंड आर्काइवल रिसर्च है. और भी हैं, बट दीज आर दी some of the techniques that are discussed in this book. So an experiment में क्या क्या चीजें होती हैं? Definition of a theoretical hypothesis, आपको hypothesis को define करना होगा. Selection of sample from known population, आपको पता है कि आपकी population क्या है जिसमें से आप sample drive कर रहे हो. तो रैंडम एलोकेशन ऑफ सैंपल्स, आपको रैंडम सिलेक्शन करनी है सैंपल की. इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान्ड इंटरवेंशन, ठीक है, उसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो इंटरवीन करता है ताकि वो देखे कि इंटरवेंशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो प्लान्ड होते हैं, वो रैंडम नहीं होते. मेजरमेंट ऑन ए स्मॉल नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कंट्रोल ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स. तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में यही एक पॉइंट होती है कि आपको जो वेरिएबल्स है उस पर कंट्रोल होता है. देन वी टॉक अबाउट सर्वे. सर्वे आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज होता है. पॉपुलर इन बिजनेस रिसर्च, perceived as authoritative, allows collection of quantitative data. As I said, data can be analyzed quantitatively. Samples need to be representative. आपके जो samples हैं वो आपकी population को represent करें, उसको clearly represent करें. हम क्यों sample drive करते हैं? sample इसीलिए drive करते हैं ताकि हमारा time बच जाए, हमारा budget बच जाए एंड हमें जो है रिजल्ट हमें वही मिले जो हमें पॉपुलेशन से मिल सकती थी. गिव्स द रिसर्चर इंडिपेंडेंस. स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज कैन बी यूज्ड. So case study provides a rich understanding. ये qualitative mode of inquiry है. Case study provides a rich understanding of a real life context. आप एक केस को स्टडी करते हो. uses and triangulates multiple sources of data. Triangulation जो है, data triangulation is के आपके जितने भी sources of data हैं उन सब में से आपको एक ही insight मिल रही हो, तो वो आप data triangulate उन सबको connect करते हो आप. The case study can be considered in 4 ways and based on 2 dimensions. Single case है, multiple case भी हो सकता है, holistic case हो सकता है, embedded case भी हो सकता है. सिंगल केस मतलब वन. मल्टीपल केसेस को आप डिस्कस कर रहे हो एक कॉन्सेप्ट को या एक चीज को स्टडी करने के लिए. होलिस्टिक केस एक जनरल केस होता है. एम्बेडेड केस इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग. देन वी टॉक अबाउट एक्शन रिसर्च. तो रिसर्च इन एक्शन और नॉट ऑन एक्शन, ठीक है, is what we say about the action research involves practitioners in the research. ठीक है, the researcher becomes part of the organization. ठीक है, आप जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर रहे हो, you become part of it, you perform as a part of it and you study uh, its different sections about what you are actually trying to do. आपके रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, but you actually become part of that organization. uh, can have two distinct focus, the aim of the research and the needs of the sponsor. ठीक है, दो फोकस हो सकते हैं. एक तो आपका एम क्या है, यू आर स्टैंड अलोन स्टडीइंग समथिंग एंड देन यू समटाइम्स डू कंडक्ट अ रिसर्च फॉर स्पॉन्सर. जो कंपनी है वो आपको रिक्वेस्ट करेगी कि यार हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है, आप काइंडली स्टडी करके दें हाउ टू ओवरकम इट. So this is again a way to do it. What is grounded theory? Again, it's a qualitative mode of inquiry. Theory is basically जो grounded theory कहती है कि आपकी जो भी इंसाइट्स हैं, जो भी थियरीज हैं, वो डेटा में लाई करती हैं. तो थियरी इज बिल्ट थ्रू इंडक्शन और डिडक्शन, एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू होगी. हेल्प्स टू प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन बिहेवियर. डेवलप्स थियरी फ्रॉम डेटा जनरेटेड बाय ऑब्जर्वेशन. एज आई सेड कि आपकी थियरीज जो हैं वो डेटा के बेसिस पे डिपेंड करती हैं. इज एन इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस, नॉट लॉजिको डिडक्टिव वन. ठीक है, इंटरप्रिटेटिविज्म ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है. Then there is ethnography. Ethnography में क्या होता है कि जो आपका researcher है, it become parts of that particular ethnicity, aims to describe and explain the social world inhabited by the researcher. ठीक है, researcher जाके inhabit करता है उस environment को. Takes place over an extended time period. बहुत ज़्यादा time लगता है इसमें और naturalistic environment में होता है. Involve the extended participant observation. Then we talk about archival research. What is archival research? हम archives को study करते हैं, हम literature को study करते हैं.
ये चैप्टर हम लिटरेचर का कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ लिटरेचर क्या होता है, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज ऑफ लिटरेचर को जो है कवर किया था। तो यूजेस एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डेटा, allows research questions focused on the past, is constrained by the nature of the records and documents। ठीक है। रोल ऑफ प्रैक्टिशनर रिसर्चर, ठीक है, की फीचर्स क्या है प्रैक्टिशनर और रिसर्चर में। रिसर्चर इज व्हाट स्टडीज एंड प्रैक्टिशनर जो उसको प्रैक्टिस करता है, जो उस रिसर्च की इनसाइट्स को अप्लाई करता है डिपार्टमेंट्स में, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिशनर। तो research access is more easily available, and then the researcher knows the organization। अगर practitioner आपका खुद researcher है तो वो he knows। has disadvantage of familiarity। The researcher is likely to their own assumptions and perceptions, preconceptions। The dual role requires careful negotiation। ठीक है, अगर आप practitioner भी हैं, researcher at the same time है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इशू भी क्रिएट कर सकती हैं। देन मल्टीपल रिसर्च मेथड्स में कैसे मल्टीपल रिसर्च, फॉर एग्जांपल मोनो मेथड में आप एक ही यूज करते हो, लेकिन मल्टीपल में फिर आपके मल्टाई मेथड आ जाते हैं और मिक्स्ड मेथड आ जाते हैं। ठीक है, मल्टाई मेथड में आप क्वालिटेटिव स्टडीज, मल्टाई मेथड में आप क्वालिटेटिव स्टडीज को करें, मिक्स मेथड में आप जो है मिक्स मेथड रिसर्च है जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कंबाइन करोगे, एंड देन मिक्स मॉडल रिसर्च, अगेन सेम थिंग। रीजंस फॉर यूजिंग मिक्स्ड मेथड डिजाइन। ठीक है, हम मिक्स्ड मेथड डिजाइन क्यों करते हैं? मिक्स्ड मेथड हम इसीलिए करते हैं ताकि आपको मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू जो डेटा मिल रही है उसको आप ट्रायंगुलेट करें। इसका ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि आपके डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उनसे आपको एक ही इंसाइट आए, फैसिलिटेट करें। कॉम्प्लीमेंट्रीली अगर आपको एक मेथड के थ्रू एक रिजल्ट आ रही है तो आप दूसरे मेथड के थ्रू देखें कि वही रिजल्ट आ रही है या नहीं आती है। देन देयर इज जनरलाइजेबिलिटी, देन देयर इज एड इंटरप्रिटेशन, देयर इज स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, सॉल्विंग अ पजल। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं। टाइम होराइजन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि दो बेसिस होते हैं इसमें, एक तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं, तो सॉरी एक सिंगल पॉइंट इन टाइम में स्टडी करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ आपके स्टडी आवर्स को और आपकी स्टडी ग्रेड्स को, लेकिन एक ही पॉइंट इन टाइम में, फॉर एग्जांपल 2019 में ही मैं आपकी स्टडी सबके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में मैं कोई एक वेरिएबल लूंगा और मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जो है स्टडी करूंगा कि पैटर्न क्या आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट कंसीडरेशन क्या होती है? रिलायबिलिटी, आपकी रिसर्च रिलायबल है, वैलिड है, जनरलाइजेबल है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, लॉजिकल जो लीप्स हैं, जो लॉजिकल स्टेप्स हैं, लॉजिकल कनेक्शंस हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ टू रिमेंबर, द रिसर्च डिज़ाइन शुड नॉट सब्जेक्ट द रिसर्च पॉपुलेशन टू एम्बैरेसमेंट। ठीक है, तो आपको जो है पॉपुलेशन जो है आपका जो सैंपल है उसके हार्म को अवॉइड करना है। ठीक है, एंड दैट इज ऑल। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रेटजीज, चॉइसेस एंड टाइम होराइजंस। फिर हमने रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कैटेगराइज किए जाते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी, हमने ये डिस्कस किया। एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी हमने टाइम होराइजन को भी डिस्कस किया। उसमें फिर हमने देखा कि भाई क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड